Hello, welcome. You're watching Mirror Now. I'm Archana Solanki. Let's get to the latest from Uttar Pradesh, where situation is tense in Lakhimpur Kheri. There are reports of clashes between farmers and the police. And according to farmers' body, 3 farmers have been killed in these protests. Let's get you the latest. Now, farmers and police clashed against each other in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri after a group of farmers allegedly tried to stop the convoy of Deputy Chief Minister from reaching the village. While in the process, the farmers claimed that the authorities started firing and targeting the farmers. Samyukt Kisan Morcha also claimed that 3 farmers were killed after being run over by vehicles. Its official statement also claimed that one of the farmers was shot dead by Union Minister's son. Meanwhile, Bharatiya Kisan Union Rakesh Tikait has left for Lakhimpur Kheri. There are contradictory versions emerging. The police's version is of course different from what the farmers are claiming. We are reporting both sides as of now, what the farmers are claiming versus what the police are claiming as to what really triggered these protests and what really happened in Lakhimpur Kheri. जहां हमारे किसान साथियों ने आज यूपी के उप मुख्यमंत्री को उतरने से, हेलीकॉप्टर से उतरने से रोकने के लिए हेलीपैड का घेराव किया था, उसी समय बहुत तेज 3 गाड़ियां आई और तीनों गाड़ियों में सवार जो पता चला है कि उसमें अजय मिश्रा टैनी, जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बेटे, उसका भाई और उनका भाई, उसके बेटे का चाचा और गुंडा लोग थे साथ। उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की अस्पताल में जाके मौत हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा डिमांड करता है कि गृह राज्य मंत्री मिस्टर टैनी, उसके बेटे और उसके भाई और वो गुंडे जो तमाम आए हैं, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। All right, so that was Darshan Pal Singh who was explaining the farmers' version. For more on this, I'm joined by my colleague Alok on the broadcast. Alok, thank you for joining us. For the benefit of our viewers who've just joined the broadcast, there are multiple versions emerging as far as these violent clashes are concerned. Could you give us the latest picture and who's saying what in this story? See, Archana, the corroboration is yet to be done because the way the incident has happened, there are a lot of voices and a lot of reports are coming. But if you see that the farmers who are protesting in basically at the Delhi borders, they are being comprises with 40 Kisan unions. These are called Bharatiya Kisan unions. And today there was a program of Uttar Pradesh Deputy CM in Tinukia village of Lakhimpur Kheri, where the MOS home, the Ajay Mishra, had also was also supposed to be arrived. In fact, his convoy came, and his son and his family members and other supporters also arrived in a car. So while they arrived near helipad, in fact, these protesters and these farmers gathered over there, and they were just trying to. They did not want them to come over there, and they wanted to stage the protest, and they wanted to show the black flags. So this is what the situation was, and they were standing at the roadside when the convoy arrived. They immediately gathered and cleared out the convoy. At the same time, the drivers of those 3-4 vehicles, they speed up the vehicle, due to which 3-4 farmers died, got injured, critically injured, and what the farmers are saying, many farmers got critically injured. So what the police say that around a dozen of farmers are being hospitalized, and they were taken to the hospital. In fact, from the other side, those who were driving the cars, 2 persons were also caught, who were sitting in the car, and they were also beaten up badly by the farmers, and they were also taken to the hospital. Their conditions are very, very much critical. So as of now, the administration has not come out with any kind of confirmation how many people have died. But from the farmer side, they are saying that 3 persons are died, and many are still critical. So we have to wait a little bit to get the exact numbers, how many are dead, if they are dead,
or how many are critically injured or how many are injured. But what we are learning from both the sides, there are injuries happened. So we have to wait that let the police confirmation come and police corroboration come that how it all has happened, because there are a lot of vandalism happened. In fact, the farmers have also burned down, torched the vehicles which were involved in the convoy of minister and his son. So this is what the whole story is about. So right now, police say that the situation is still tense but under control. Right, and Alok, as we speak, political reactions have also started coming in. Rahul Gandhi has tweeted and has condemned the violence. Meanwhile, Arvind Kejriwal has also condemned it. While keeping politics aside, as you were telling us what really happened, and more information needs to be gathered in order to piece together this entire incident. For the benefit of our viewers, could you give us more details as to why these farmers were in Lakhimpur Kheri in the first place? But you have said that they were protesting BJP minister's arrival. But there are reports in the SKM statement that a union minister's son allegedly shot at the farmers. To what extent have we got clarification on that aspect? Well, nobody from the police authority is ready to speak on the issue. They are not at all speaking to the media. In fact, right now, we are waiting from the police side. In fact, what we are learning, ADG Law and Order, Prashant Kumar from Lucknow, he has already left for Lakhimpur Kheri and he is on the way. So once he reach over there, definitely some police version will come. Apart from that, if you talk about the politics, yes, the politics is still going on. And remember, recently the farmers had done the 1 day of Bharat Bandh, in which the political parties had also supported, that opposition had also supported. Congress openly supported Aam Aadmi Party. Delhi's Aam Aadmi Party had also supported them. So definitely the political reaction has now started coming out, and they are condemning the act and whatever the incident has happened. We have to wait that under what circumstances this incident has happened, because if we talk about, if we believe on administration's view, they say that that the police tried to control over the people, those who were trying, and it was a kind of a mob, and they get out the vehicle. So when they tried to stop them, then they attacked the police party as well as the convoy. So that is why the force was used. However, the protesting farmers are saying that it was a peaceful protest which they were doing, and they were just marching on the road. They were standing on the roadside when the convoy came, and immediately that the people who were driving the vehicle in the convoy, they ran over the farmers, and somebody also opened fire at them. So there are different versions from both the side. Everybody is leveling allegations to the other side. We have to wait, but yes, situation is still under tense. Back to you. Absolutely. Thank you, Alok. And we have to reiterate this on Mirror now that it's a very sensitive story. So it is very important that we give it some time. And it's important to put both sides as of now, what has happened. We'll wait for the official version, but we'll also put forth what the farmers are saying. And we are waiting for that press conference of Samyukt Kisan Morcha to begin anytime soon. And we'll get you all the latest. All right, the press conference has started. Let's cut across. दर्शनपाल जी को को-होस्ट बना दीजिए और कविता कुरुगंती को को-होस्ट बना दीजिए, हैं? जी, ठीक है। नमस्कार, वेलकम साथियों। संयुक्त किसान मोर्चा की रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस विशेष और इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मेरे साथ हैं डॉक्टर दर्शनपाल, कृष्ण प्रसाद, हमारे दूसरे कुछ साथी भी ज्वाइन कर रहे होंगे, और स्थानीय इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी और वहीं स्थानीय लखीमपुर खेरी से हमारे साथ जुड़ी हैं ऋचा सिंह जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके सामने तथ्य लेके आएंगे इस घटना के, जो कि सिर्फ किसान आंदोलन के लिए नहीं, इस देश के जन आंदोलनों के लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश के किसानों के लिए बहुत दुखद और शॉकिंग घटना जो है
उसके बारे में हम तथ्य रखेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा का क्या स्टैंड है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ऋचा सिंह जी से आग्रह करूंगा। ऋचा सिंह जी, अपना पूरा परिचय भी दे दीजिए पत्रकारों के लिए। ये मैं 2-3 बातें सिर्फ इस शुरू में कह दूं। पहला, जब कोई साथी बोल रहे हैं उस वक्त प्लीज सब लोग अपना ऑडियो बंद रखिए, प्लीज बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। नंबर 2, सवाल सारे अंत में पूछे जाएंगे, जब संयुक्त किसान मोर्चा के सब साथी बोल लेंगे उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे, उससे पहले नहीं। और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सब थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले ऋचा जी से अनुरोध करूंगा, जो वहां मौके पे मौजूद हैं लखीमपुर खेरी में, कि वो हमें थोड़ा सा अपने बारे में 2 पंक्ति का परिचय भी दे दीजिए ताकि पत्रकारों के लिए आसान हो जाए, और आज का घटनाक्रम क्या था उससे आप अगर 2-3 मिनट में बता सकें। ऋचा जी। ऑडियो बंद है। हाँ ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही होगी। तो बिल्कुल आ रही है, मेरा नाम ऋचा सिंह है और मैं सीतापुर में रहती हूँ और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी हुई हूँ। उत्तर प्रदेश से उसकी कन्वीनर भी हूँ और सीतापुर में हम लोगों का एक संगठन है, संगठन किसान मजदूर संगठन, उसके साथ भी जुड़कर काम कर रही हूँ। तो पूरा घटनाक्रम ये रहा कि ये पिछले कुछ दिन पहले यहाँ के लखीमपुर के सांसद अजय मिश्र उर्फ टेनी जी ने किसानों को लेकर बहुत खराब तरीके से स्टेटमेंट दिया, खदेड़ देंगे किसानों को, भगा देंगे, टिकने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ के किसानों में बहुत आक्रोश था लखीमपुर के। और ये एक आज का कार्यक्रम तय हुआ था टेनी जी के यहाँ, एक कार्यक्रम जो मतलब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को आना था। हम किसानों ने सबने मिलकर, खासतौर से लखीमपुर के स्थानीय किसानों ने तय किया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अन्य जनपदों के लोग भी जुड़े इसमें, हम लोग ही सीतापुर से हैं, हम सब जुड़े इसमें। और आज सुबह 9 बजे जहां उनका हेलीपैड बना था उससे थोड़ी दूरी पर वो तिकुनिया नाम की एक जगह है, वहां पर किसान इकट्ठे हुए और तेजिंदर सिंह विर्क भी जी थे, मांगत जी थे और भी बहुत सारे लोग। और हम लोग वॉक करते हुए, चलते हुए हेलीपैड तक पहुंचे और बिल्कुल निश्चित ही किसानों से जुड़े नारे लगाते हुए, लेकिन एकदम शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी गाड़ी को बिना परेशान किए, बिना रोके हम लोग हेलीपैड पे पहुंच गए और वहां जाकर बैठ गए। पूरी पुलिस फोर्स भी थी, हम लोग बैठ गए। एक ट्रैक्टर ट्राली हेलीपैड पर पहुंचती है और वही हमारा मंच बन जाता है और वहां से लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। और एक तरह से हाँ, लखीमपुर का पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचता है और बातचीत स्थानीय लोगों से, खास तौर से उनकी होती है जो स्थानीय लीडर थे यहाँ के हैं। उस बातचीत के दौरान ऐसा लगभग तय भी हो जाता है कि उनका रूट बदल जाएगा और हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हम यहाँ से उनका पीछा नहीं करेंगे। ये हमारे हाथ में था कि हम उनके पीछे जाते, लेकिन सभी लोगों ने ये तय किया कि नहीं, पीछे जाना ठीक बात नहीं होगी, हम लोग अपनी जगह पर रहेंगे, हमारा विरोध ऐसे ही जारी रहेगा और हम जब उनका वहाँ कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी यहाँ से खत्म करके कार्यक्रम चल देंगे। यहाँ तक की बात तय हुई थी कि हम एक साथ डिस्पर्स नहीं करेंगे, हम इसका अंदाजा लेंगे कि जब उनका कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके थोड़ा पहले या बाद में हम लोग निकलेंगे, नहीं तो दोनों के लोग कहीं आपस में टकराए ना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से वहां लंगर चलने लगा, सब लोग आराम से हंसते, बात करते, विरोध करते वहां पर उपस्थित रहे। करीब 2:15 बजा होगा, दूर दराज के किसान वापस भी जाने लगे थे। हम सीतापुर के 4 लोग एक गाड़ी में थे, हम लोग निकले कि अब हमें निकलना चाहिए, दूर है वहां से सीतापुर। और जैसे ही हम लोग गए तो हमने देखा कुछ गाड़ियां आ रही हैं। निश्चित ही हमने नारे लगाए उस वक्त उन गाड़ियों को पार करते हुए
और आगे बढ़े। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और अभी थोड़ी ही दूर चलकर पहुंचे थे कि अचानक ये खबर मिली कि मतलब वहां पर गाड़ियों ने कुचल दिया है। तो हुआ ये है कि टेनी जी के सुपुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू जी अपने कुछ 10-15 गुंडों के साथ वहां गाड़ियों में पहुंचे हैं और सड़क के किनारे, हेलीपैड सड़क से थोड़े नीचे पे था तो ढलान का रास्ता था, सड़क के किनारे कीचड़ भी था और लोग बिल्कुल किनारे झंडे लेकर खड़े थे और उनको कुचलते हुए वो गाड़ियां गई हैं आगे, तेजिंदर सिंह विर्क तक पहुंची हैं और वो घिसटते हुए दूर तक आए हैं और इसी बीच बहुत अफरा तफरी मचती है और लोगों का कहना है, मैं नहीं थी उस वक्त वहां पे एकदम एन मौके पे, लोगों का कहना है कि गोलियां भी चलाई हैं उन्होंने और उस अफरा तफरी में फिर जो जो गाड़ी चला रहे थे, जिस गाड़ी ने कुचला, वहां हाथापाई सब कुछ चलता है और फिर लोगों की, हम लोग तुरंत पलटकर वापस चलने चले लेकिन जबरदस्त पुलिस फोर्स तब तक पहुंच चुकी थी और हम वापस वहां जाने के बजाय लखीमपुर जिला अस्पताल आ गए और जिला अस्पताल में तो हुआ है ऐसा कि वहां पर जो कुचले गए वो 2 किसान शहीद हुए हैं और 2 किसान घायल अवस्था में लाए गए जिला अस्पताल तक और हमारी आंखों के सामने एक बुजुर्ग करीब 50 साल, मुझे नाम नहीं मालूम, उनकी मौत हुई है और दूसरा लड़का 19 साल का लवप्रीत नाम का लड़का, वो अस्पताल लाया गया और हमें लग रहा था वो घायल है लेकिन बाद में समझ में आया कि उसकी रास्ते में ही मौत हुई है। इस तरह से 4 और कुछ लोग 5 भी कह रहे हैं। तो ये स्थिति इधर से है और वहां पर भी लगी है, उन लोगों ने खुद लगाई है ऐसा भी कहा जा रहा है और उधर से भी हमलावर टीम से भी 4 लोगों की मौत हुई है। इतनी जानकारी है। तेजिंदर सिंह विर्क जी को काफी चोट लगी हुई है सर पे, हालांकि वो होश में है। थोड़ी बात मुझसे भी हुई है उनकी, उनको यहाँ का जिला अस्पताल लखनऊ रेफर कर रहा था लेकिन उनके साथियों ने उनको बरेली रेफर कराया है और वो जा चुके हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ लखीमपुर के गुरुद्वारे में इकट्ठे हैं। मैं गुरुद्वारे से बाहर खड़ी होकर ये बातचीत आप लोगों से कर रही हूँ। अभी तक की ये स्थिति है। यहाँ चूंकि खबर मिला है कि राकेश टिकैत जी चल चुके हैं और चारूनी जी चल चुके हैं तो लोगों की आपस में भी बातचीत चल रही है। अब कल सुबह का इंतजार होगा। ओवर। अगर कोई सवाल हो तो मैं बिल्कुल बात कर सकती हूँ। गुरमनीत जी जॉइंट। योगिंदर जी, गुरमनीत मांगट ज्वाइन कर गए क्या? गुरमनीत, हाँ गुरमनीत ज्वाइन कर गया है। गुरमनीत थोड़ा, हाँ अपना वो माइक माइक, हाँ बस ठीक है। योगिंदर जी मांगट ज्वाइन कर गए हैं स्पोर्ट्स। हमारे साथी गुरमनीत मांगट खुद मौके पे हाजिर थे। मांगट भाई, अभी ऋचा जी ने ओवरऑल सारी स्थिति बता दी है, लेकिन चूंकि आप उस वक्त मौके पे खड़े थे तो बस उसका थोड़ा सा 2-3 मिनट में आप बता दीजिए कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ। उन्होंने बता दिया है कि इससे पहले मंत्री ने क्या प्रवोक किया था, उसके बाद जब आप जहां गाड़ियां आई उस वाली स्थिति आप एग्जैक्ट बता दीजिए। शुक्रिया मांगट भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है मांगट भाई। हेलो मांगट भाई, उनका ऑडियो खुला हुआ है ना? हाँ मांगट भाई बोलिए। अभी
अभी डीएम और एसएसपी आए थे यहाँ पर और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि कोई यहाँ पर जो लोकल बीजेपी के गुंडे हैं वो उनको खटकने नहीं दिया जाएगा। और जिस सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमारे पास जो आंकड़ा है वो 4 हमारे किसान शहीद हुए हैं। ये 3-3:15 बजे की घटना है और जो अजय मिश्र टेनी है उनका बेटा मोनू मिश्र और उनका भाई 3 गाड़ियां लेके, एक फॉर्च्यूनर, एक थार और एक स्कॉर्पियो, वो बड़ी तेजी से आए और किसान जिनको ये कह दिया गया था कि जो डिप्टी सीएम है वो दूसरे रास्ते से चले गए हैं, अब थोड़ी देर में चाय पी के आप घरों को जा सकते हैं। सो पीपल वर अबाउट टू लीव, तो वो आकर एकदम से जो रोड की साइड पे किसान खड़े थे उनकी तरफ गाड़ियां लहराने लगे, उड़ाने लगे। मेरे को जो मेरा साथ लड़का था उसने धक्का देकर साइड पे किया और ऐसे ही करते कराते आगे जाते उन्होंने हमारे पहले उन्होंने गोली चलाई, एक किसान के सिर पे गोली बजी और ऐसे लोगों को रौंदते चलते गए, 2 किसान को रौंद के मार दिया और फिर आखिर में तजिंदर विर्क जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। वो थार तजिंदर विर्क जी के ऊपर चढ़ी, जिससे तजिंदर विर्क जी के जब ऊपर चढ़ी तो उसके बाद गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस होके पलट गई और तजिंदर विर्क जी को बहुत चोट लगी और इसी में उनका एक व्यक्ति हमारी जानकारी में आया है कि वो भी गाड़ी पलटने से पूरा हो गया है। और उसके बाद वहां से जी हेलो, मांगट भाई का ऑडियो थोड़ा लगता है चला गया, लेकिन उन्होंने बेसिक फैक्ट्स बता दिए हैं। तो मैं आप सबके लिए बेसिक फैक्ट्स दोहरा देता हूं इससे पहले कि दर्शनपाल जी हमारी बात रखें। मांगट भाई दोबारा जुड़ गए तो हम करेंगे। बेसिक फैक्ट्स देखिए बड़े सिंपल हैं कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय मिश्र टेनी, जो उस इलाके के सांसद हैं, वो किसानों को प्रोवोक करते रहे थे। आज किसान उसके विरोध स्वरूप और उप मुख्यमंत्री के विजिट का विरोध करने के लिए काले झंडे लेके प्रदर्शन करने के लिए हेलीपैड पे पहुंचे थे। वहां पर उप मुख्यमंत्री नहीं आए। पुलिस ने किसानों को बताया कि अब आप डिस्पर्स कर सकते हैं, वो एक दूसरे रास्ते से गए हैं। किसानों की तरफ से कोई प्रोवोकेशन वहां नहीं हुआ, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। और जब किसान वहां से डिस्पर्स कर रहे थे उस वक्त ये 3 गाड़ियां आती हैं जिनके बारे में आरोप है कि ये आशीष मित्र मोनू, जो कि अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, उनके नेतृत्व में 3 गाड़ियां आई। उन गाड़ियों ने किसानों के ऊपर, जो किसान डिस्पर्स कर रहे थे सड़क के किनारे थे, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। गोली चलाने की भी हमारे एक साथी पुष्टि कर रहे हैं और जिसके चलते 4 किसान अब तक शहीद हुए हैं, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। काफी लोगों को इंजरीज होने की खबर भी आई है। हमारे नेता, हमारी कमेटी के सदस्य भाई तेजिंदर सिंह विर्क, जो कि तराई किसान संगठन के नेता हैं, उनको गंभीर चोट आई है। उनकी फोटो अभी मैंने देखी तो वो कॉन्शियस हैं, लेकिन सर पे और उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। कई और किसानों को चोट आई है। ये अभी तक फैक्ट्स हैं हमारे सामने। मैं कृष्ण प्रसाद से कहूंगा कि वो 2 मिनट में हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दें। उसके बाद डॉक्टर दर्शनपाल किसान आंदोलन की तरफ से हमारी मांग और हमारा प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। पहले कृष्ण प्रसाद जी। योगिंदर जी मांगट आ गए हैं, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। मांगट भाई, आपसे पूछना यही है कि क्या आप वो 4 किसानों के नाम कंफर्म कर सकते हैं जो 4 शहीद हुए हैं? अगर आपके पास सूचना हो तो। All right, so there you heard the farmers of Samyukt Kisan Morcha. They were narrating their version, telling us what happened this afternoon, the death of farmers, what triggered it, and the latest. We'll take a short break and we'll come back with more updates. Stay tuned.